Hello guys, welcome to On the Rocks. Today we have Sarthak Garg. He is a co-founder of College Vidya in SOIC. He has built College Vidya 90,000 plus student community with 400 plus team members and SOIC a YouTube channel above 300,000 subscribers and thousands of paid members. Today we are going to learn how to build, scale and maintain your startup growth. So let's dive in. I hope you enjoy the episode. Sarthak, welcome to On the On rocks. the Rocks. Thank you so much for coming on such short notice. I appreciate all the time you have spent to come here. So I want to give a little background to my audience about you, and then I will hand it over to you and would love to learn from you about what all you have built. So you run two successful startups. I won't call it startups now. Actually, I call business. Okay, one is College Vidya, and second is SOIC. College Vidya, I know for years have been involved, and SOIC you are doing great with Ish Mohit. एक बार जस्ट लेट्स गिव हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग टू आवर ऑडियंस कि कॉलेज विद्या करता क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है एंड SOIC क्या कर रहा है और दोनों का विजन क्या है. वहाँ से शुरू करते हैं. Firstly, thank you so much for calling me, right? And on the question, like you said, no, कि college vidya and SOIC क्या करते हैं? So college vidya is a education, मतलब company नहीं है. We are not providing any course. So what we figured out कि everyone is doing ads, right? Everyone is कि मैं best. So what we figured out कि after like lot of research, what we did कि लोगों को पता है कि उनको क्या कोर्स करना है, क्या बनना है, बिकॉज RTG इज वर्किंग प्रोफेशनल, सो दे नो कि यार मुझे मार्केटिंग में ही करियर बनाना है, मुझे फाइनेंस में बनाना है, मुझे UI UX सीखना है, बट दे डोंट नो कि अब किससे सीखना है. बिकॉज इफ यू सी एवरीवन हैज हायर्ड एजेंसीज, everyone is doing Meta, everyone is doing YouTube, everyone is doing मतलब every PR and all those, but no one knows कि अब कौन सा मतलब क्या किससे चूज करे वो चीज. तो वी आर सॉल्विंग दैट कि आओ ऑन द प्लेटफॉर्म, कंपेयर इट, then proceed directly, because there are a lot of frauds also happening. So if you see मतलब Google पे just type XYZ University for example, you will see lot of domains कि XYZ distance.com, XYZ online.com, मतलब you won't be able to figure out कि मतलब genuine website कौन सी है. So we are solving that in College Vidya. So College Vidya has more than 90,000 students, huh? And apart from giving them a platform which can guide them through कि which university is right for them, पहले if you can tell the audience कि क्या क्या parameters होते हैं उसमें that the student can evaluate, और क्या value provide करता है College Vidya, like what is the whole product journey that you offer, because 90,000 students is a big size, and the way it has grown I have seen. So definitely the value we are providing to all the students now, it's on the high level. So I want to understand more. So it's a journey of 5 years now in College Vidya. तो College Vidya में हमने क्या पैरामीटर्स देखे? फर्स्ट है स्टूडेंट रिव्यूज. सो दीज आर जेन्युइन रिव्यूज. मतलब आप आजकल Amazon पे कैसे लेते हैं, राइट? वी सी द रिव्यूज कि यार इस पे इतने रिव्यूज है, इस पे कितने 5 स्टार है, कितने 4 स्टार है, 1 स्टार कितने हैं. मैं अभी एक पॉडकास्ट सुन रहा था कुणाल शाह का, वेयर बड़ा अच्छा मेंशन किया कि इंडिया इज अ मार्केट ऑफ 5 स्टार और 1 स्टार. देयर इज नो मिडिल स्टार. मतलब हमारी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो 5 स्टार में दे देगा कोई भी, पर और बहुत खराब गया तो सीधा 1 स्टार देगा. देयर इज नो 2, 3 और 4, राइट? सो a student can obviously मतलब student reviews से देख सकता है. Then prizes are there. Then the rankings are there, because in universities what happens is NIRF ranking क्या है, NAC ranking क्या है, and even post service जो मतलब एक तो हो गया परचेज. मतलब जैसे हमने जोमेटो पे बर्गर मंगवा लिया, तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि एक रिवर्सेबल डिसीजन होता है, एक इरिवर्सेबल डिसीजन होता है. रिवर्सेबल में क्या होगा, एक बर्गर खराब आ गया तो, राइट? बट डू यू थिंक कि आप एजुकेशन फिर से करोगे इन टर्म्स ऑफ वही सेम चीज? तो उसमें आप LMS देख सकते हो कि पोस्ट एडमिशन मुझे क्या क्या सर्विसेज मिलेगी, उसका पोर्टल कैसे है, उसमें कितने लेक्चर्स हो रहे हैं. तो एवरीथिंग मतलब ऑन वन प्लेटफॉर्म यू गेट अनबायस्ड. Interesting. Yeah. Interesting. Okay, let's talk about SOIC, like what it does and what kind of audience that you're catering to, and what is the vision with the brand. Okay.
So SOIC हमने we started in COVID. So me, Ishmoet, Siddhant, we were very avid readers in terms of financial education. तो हमने एक चीज़ देखा कि फाइनेंस में सब वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, ये सब वेस्टर्न बुक्स पढ़ रहे हैं, बट देयर मतलब फिलॉसफी, देयर एजुकेशन इज टॉप नॉच, बट हाउ टू अप्लाई इट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वो मिसिंग था. बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बेन ग्रेमन बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, वो चीज़ नहीं चलती इंडिया में. पेनी स्टॉक्स नहीं चलते इंडिया में, राइट? तो वो चीज़ मतलब वेस्टर्न एजुकेशन को कैसे अप्लाई करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो मिसिंग था. तो हम जब पढ़ते थे तो हमने बहुत नुकसान भी खाए. तो फिर हमने फिगर आउट किया कि यार हाँ मतलब ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, अब इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई करें. इतनी सारी बुक्स को, इंडियन बुक्स है नहीं स्टॉक मार्केट में इतनी सारी, अब पहले नहीं थी, अब थोड़ी आने लग गई है, बट वो अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कैसे करें. तो वी स्टार्टेड कि स्टॉक एनालिसिस करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, धंधा समझाते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट मतलब सॉल्व कर रहा है, 5 years के क्या फाइनेंशियल्स हैं, क्या मैनेजमेंट में देखना है आपको, क्या उसकी वैल्यूएशन है, क्या ट्रिगर पॉइंट्स है ना. सो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड SOIC एंड द विजन इज टू मेक मतलब एवरी इंडियन, मतलब हम बोलते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास एज है. अभी हम ये सोचते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नॉलेज नहीं है, बट व्हाट वी थिंक इज रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सबसे बड़ा एज है. व्हाई? बिकॉज दे कैन इन्वेस्ट इन एनी कैप, दे कैन स्टे इन कैश. मतलब उनके पास ऐसे मैंडेट्स नहीं है कि यार 65% तो इक्विटी में होना ही चाहिए एवरी टाइम, राइट? दे कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स एज वेल, मिड कैप्स एज वेल, एंड दे कैन वेट. मतलब अभी आप देखो फंडिंग में भी क्या हुआ, मतलब 4-5 years का उनका एक वो होता है, मैंडेट होता है कि आप इससे ज़्यादा वेट ही नहीं कर सकते, यू हैव टू गिव रिटर्न. देन वो मिस्टेक्स होती है. तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ अ रिटेल इन्वेस्टर्स एंड आई रियली बिलीव कि इंडिया बीइंग सच अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे सबको वो लड्डू मतलब आना चाहिए, कमाना चाहिए. Fair enough. Yeah, Sathak, scaling and growing College Vidya to 90,000 students and 400 plus team members, SOIC to more than 300,000 subscribers, and I'm not sure how many like thousands of members that you have now. Doing both the things together, like that is commendable. But as an entrepreneur who is starting right now, these numbers feel like a long haul. कि यार कैसे होगा, वहाँ पहुँचना है. And obviously math says and data says कि यार 99% लोग नहीं पहुँच पाते हैं. So what was that trait or bunch of habits that has helped you to successfully build 2 businesses with great partners and then still growing? राइट. सो मतलब मैं इसमें फर्स्टली मतलब टीम को बहुत क्रेडिट दूंगा. सो हमने मतलब मेरे सारे पार्टनर्स में, सो आई हैव डिफरेंट पार्टनर्स इन कॉलेज विद्या, आई हैव डिफरेंट पार्टनर्स इन SOIC, बट द बेस्ट थिंग व्हाट आई सॉ वाज कि एवरीवन इज विलिंग टू वर्क, गिव देयर 100%, एंड उनका नेचर ये है कि जैसे होता है ना कि बीच में बैठ जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो एवरीवन ऑल्सो सीज कि यार ये खुद ही वॉरियर में आ गए हैं, फाइट में आ गए, राइट? बट हाँ, स्केलिंग में एवरी थिंग कैन नॉट बी डन बाय, मतलब हम हर चीज़ नहीं कर सकते, राइट? वी ऑल्सो हैव ओनली 18 hours टू वर्क, राइट? तो हमने उसको बहुत अच्छे से मतलब पहले खुद किया, फिर हमने टीम को दिया, फिर उसके हमने पूरे मतलब एक सिस्टम बनाया कि यार दिस हैज़ टू बी डन एंड इट इज़ योर कंपनी. सो एवरीवन इन आवर कंपनी वी टर्म इट एज पार्टनर्स. तो वो कल्चर लेके आना इन टर्म्स ऑफ कि नहीं यार मतलब यू आर नॉट वर्किंग. बहुत आजकल सोशल मीडिया पे ना एम्प्लॉयज़ को तो ऐसा बना दिया है कि 9 to 6 यू आर डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब, यू आर डूइंग दिस, बट नो, मतलब इफ द कंपनी ग्रोज, सबको ये कम्युनिकेटेड है, इफ द कंपनी ग्रोज यू विल ऑल्सो ग्रो विद अस. तो सबका फोकस एक जगह है, कंपनी पे कैसे ग्रो करना है. तो वो उनको ऑटोमेटिकली पता है कि दे विल ऑल्सो ग्रो. सो we grow from our 0 to 90,000 students and the team size has also increased and मतलब attrition is less than 10%, 15%. So just imagine, क्योंकि हमें भी पता है कि it takes time to learn things and then losing them is a मतलब is not a win-win. तो I really think कि win-win relationship is the most important thing. कि उनको अगर partners जैसा फील नहीं करवाए ना, देखो तो आजकल जैसे मैं देखता हूँ, बड़े अच्छा बोला उन्होंने कि आजकल की जो टीम है, वर्कफोर्स है, दे आर नॉट वर्किंग कि उनके घर में सर्वाइवल का इशू है. दे आर वर्किंग फॉर दैट एक्सपीरियंस, फॉर दैट लर्निंग.
तो वो चीज़ मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग, कि सबको पता हो उनका जॉब रोल क्या है। Fair. आधी चीज़ों में कंफ्यूजन कहाँ होती है, जब उनको पता ही नहीं है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो जस्ट राइट डाउन कि भाई ये what is this is expected, this is how it is done, you have to coordinate with bunch of people, this and they will deliver. मतलब अब वो रात को करे सुबह करे, that is another thing, but would they will deliver. 100%. Actually, I have another question on process and system creation, because this is my personal failure also in my initial days, where I could not create system. I got the right person with the right salary or a good heavy salary, and then I thought, okay, this person will do it. Right. कर लेगा, अपने आप ही कर लेगा इसको. But वो हुई नहीं. And then I realized कि यार मतलब यार ये और वही सेम बंदा किसी और कंपनी में फोड़ रहा है, तो ये कैसे हो सकता है यार. Then I realized कि क्लैरिटी नहीं देता है, मतलब एज मैनेजमेंट और एज द CEO और एनीवन इन द कंपनी इन द सीनियर लेवल, यू हैव टू गिव क्लैरिटी कि तुम्हें करना क्या है. तुम्हारे KRA KPI डिफाइन होने चाहिए, और उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी होना चाहिए कि यार तुम हर महीने बैठ रहे हो उसके साथ कि भाई ये तेरे KRA KPI थे, तुझे इसका वेटेज ये था, इसका वेटेज ये था, इसमें तुम्हें 10 में से तूने 7 अचीव किया है, इसमें 10 में से तूने 2 अचीव किया है, इसका तेरा प्लान ये होना चाहिए. उसको पता है, क्योंकि उसको पता है कि अगले महीने डिस्कशन दोबारा भी होगी. Right. ठीक है, तो दे ऑल्सो रन आफ्टर दैट प्रोग्रेस, बिकॉज इट बिकम्स अ गेम, है ना. एंड दे एज यू राइटली सेड, दे आर विलिंग टू वर्क ना. एंड इट इज मोस्टली द सीनियर्स fault where they are not able to communicate. Right. And obviously you find those bad fish also, you do wrong hiring as well, but that is your job to find out and take them out of the system. Right. So वो 100% है. And one thing that you said that I connect with a lot, कि यार लोग मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ वाला माइंडसेट है ना, उनको लगता है कि यार यहाँ तो मैं काम करूँगा, बॉस पैसा कमाएगा. टेक्निकली इट इज़ ट्रू, ठीक है, बट वट इफ द बॉस इज मेकिंग मनी and the company is growing, in this environment you are taking a badge with you. Right. If the war is done and then you have done a good job, now you have a badge on your shoulder, and whenever you will go in your next career path, either that is a job or your own thing, that badge is always going to stay with you. If you were in the initial days of building, let's say Swiggy, right, like you have a market value even though you didn't even own the company, for example, even on a ESOP level. Right. But still you have a badge here I was when it was scaling, right? You have that batch, as well as I really believe कि जैसे Swiggy for example खाली जब 1000 यूजर था, अब now they have billions of users, तो that person would have grown. मतलब अगर कल्चर अच्छा है, would have grown, because no entrepreneur or anyone, I won't say entrepreneur ही नहीं, anyone cannot grow with the team. मतलब it is the basic fundamental of business. मतलब बोला भी जाता है कि एक CEO का रोल क्या है, just to manage people. राइट मतलब क्योंकि टीम ही कर पाएगी. अगर आप स्केल कैसे करोगे, मतलब 10 बंदों की टीम है तो आप बीच में बैठ के कर रहे हो, यू नो कि यार इसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, यू कैन माइक्रो मैनेज. बट आफ्टर वन स्केल मतलब यू कैन नॉट डू. एंड आजकल की टीम चाहती भी नहीं है कोई उनको माइक्रो मैनेज करे. व्हाट आई हैव लर्न कि मतलब एक मैं ये देखता हूँ कि उनसे पूछो कि क्या क्या गैप्स है, राइट उनको वो फटाफट लिख देंगे कि ये गैप है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. देन फिर उनसे सेकंड पूछो कि आप क्या क्या सॉल्व कर सकते हो इसमें. दैट इज द KRA KPI. मतलब दिस इज हाउ आई फ्रेम्ड KRA KPI इन माय ऑर्गेनाइजेशन कि भाई पहले तुम देखो एक महीने में कि क्या क्या गैप्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, देन फिगर आउट कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, डू इट. देन यार ये जो गलती मैंने करी ऑफ नॉट डिफाइनिंग द KRA KPI और एक्सपेक्टेशंस विद द टीम मेंबर्स, आई एम श्योर दैट अ लॉट ऑफ फाउंडर्स और अपकमिंग फाउंडर्स विल बी मेकिंग द सेम मिस्टेक. उनको कोई फ्रेमवर्क दे सकते हो इन सिंपल वर्ड्स कि यार जब तुम अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, तुम्हें पता है कि यार तुम्हारे बिजनेस के अंदर तुम्हारा ऑपरेशंस है, फाइनेंस है, सेल्स है, मार्केटिंग एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स, दोज आर लेट्स से बिजनेस वाइटल्स. उसके लिए सिस्टम कैसे बनाए, मतलब शुरुआत कहाँ से होगी इसमें इन सिंपल वर्ड्स, तो समझे कि हाँ इसके बाद पढ़ तो सी एटलीस्ट, पढ़ के इसको बना टाइम लगेगा, बट दीज आर द नेक्स्ट 3 steps you have to take when you're starting the business or right now fixing your business. तो पहले मैं उसकी ना सिग्निफिकेंस समझाता हूँ. बहुत एक नेगेटिव टर्म है कि KRA KPI बना देते हैं, जज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट वंस यू स्केल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आपका एक स्मॉल स्टार्टअप है 5-10 people, then you don't need KRA KPI यार. हाँ, तो रोज जाके बैठो काम करो. हाँ है ना. और तब आप मतलब हर चीज़ देखते हो, आपके सामने ही है टीम, बट यू नीड KRA KPI when the team grows.
ये तो एक फैक्ट, मतलब अगर KRA KPI नहीं है तो इट विल लीड टू सम डिजास्टर इन फ्यूचर, बिकॉज यू डोंट नो कि आप जिसको रिवॉर्ड कर रहे हो उसने वर्क किया है, और वो एक दूसरा बंदा ये सोचेगा कि मैंने इतना काम किया मुझे रिवॉर्ड नहीं किया, राइट? तो हाउ वी फ्रेम्ड KRA KPI वाज वेरी सिंपली कि पहले हमने जैसे फ्रॉम जीरो टू लेके गए, तो वी नो कि हमें क्या क्या आता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस में, क्या है ऑपरेशंस में, क्या है, सो वी नो, मतलब हर चीज़ हमें आनी चाहिए, बट ये नहीं कि हम करेंगे सारी चीज़ें। तो हाउ वी डिफाइन कि यार मुझे, मैं ये करता था जब मैं इस डिपार्टमेंट में था, जब मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो फिर ये बन गया आपका KRA फॉर एग्जाम्पल। देन आफ्टर मंथली रिव्यू आप देखो कि उनसे ही पूछो कि व्हाट आर द गैप्स। तो बहुत अच्छा है कि गैप्स निकालने में ना हम सब चैंप है, तो दे विल फिगर आउट द गैप्स, देन आइडेंटिफाई कि यार इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे, इसको किस किस की हेल्प चाहिए होगी, देन KRA उनका भी बन गया, इनका भी बन गया। तो मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ कि खाली लीड्स लाके कुछ नहीं होगा, खाली मार्केटिंग करके कुछ नहीं होगा, राइट? तो सेल्स भी, CRM भी इंटैक्ट होना चाहिए। तो डिजिटल मार्केटर ने फ्रेम किया कि यार मैं लीड्स तो ले आता हूँ, पर इस पे तो कोई कॉल ही नहीं करता, 2 घंटे लग जाते हैं। तो व्हाट विल, मतलब KRA किसका बना, एक मेरे जो लीड स्क्वायर जो मतलब CRM मैनेज कर रहा है, कि यार अगर आधे घंटे तक ये नहीं हो रहा तो मेक अ ऑटोमेशन, गिव इट टू समवन एल्स। एंड हमारी सेल्स टीम का, काउंसलिंग टीम का एक KRA बना कि यार मतलब अनअटेंडेड लीड्स नहीं होनी चाहिए 2 आवर्स में। सो दैट इज हाउ इट बिकम्स। ठीक है, कमिंग ऑन, अभी करंट जो पूरा का पूरा सेटअप है, मतलब 400 पीपल देयर एंड ग्रोइंग टीम इन SOIC, डूइंग ग्रेट नंबर्स, तो ऑब्वियसली जितना बड़ा बिजनेस, ये एक तो ये मिथ है कि जितना बड़ा बिजनेस है उतना ज़्यादा फ्री हो जाता है, फाउंडर ऐसा नहीं होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। यू गेट इवन मोर इन्वॉल्व Right. एंड मोर एब्जॉर्ब्ड ऑल्सो इन द बिजनेस। तो फिर दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हो? मल्टीपल बिजनेस करना ना एक बड़ा डिस्कशन चलता है कि यार बी फोकस, डू ओनली वन थिंग एट वन टाइम, एंड देन देयर आर पीपल लाइक Gary Vee who advocates about कि यार having multiple businesses, entrepreneurships are made to do multiple businesses and you can still do great job. So what is your mindset, and second how you're doing it? तो मतलब मैं बोलूँगा कि इन स्टार्टिंग यू कैन नॉट डू मल्टीपल बिजनेसेस, बट वंस यू बीन 1 to 2 years देन यू कैन स्टार्ट, बिकॉज तब तक आप बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हो, बहुत चीज़ें ऑटोमेट कर लेते हो, KRA KPIs डिफाइन कर देते हो, राइट? एंड मतलब द ब्यूटी जो मुझे लगा कि यू लर्न फ्रॉम 2 businesses एंड देन व्हाट यू डू इज, यहाँ से लर्निंग मिली, यहाँ पे झटका खाया, यहाँ पे सुधार लेते हैं, यहाँ पे करा, बिकॉज मतलब आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं हम, तो हम मतलब खा के ही मारेंगे, मतलब तभी हम एक लर्निंग मिलेगी, राइट? तो मेरे साथ ये बेस्ट पार्ट हुआ कि मैंने यहाँ से कुछ सीखा, वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, वहाँ से कुछ सीखा, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। सो ये 2 वे चला, तो ये बेस्ट पार्ट रहा मेरे लिए, मेरी मतलब जर्नी में, कि साइमल्टेनियसली। और एक और बेस्ट पार्ट था कि SOIC was more focused on research, was on learning. तो बेस्ट पार्ट क्या होता था, हम यहाँ पे तो लर्निंग अप्लाई करते थे, वो यहाँ पे भी करते थे। सो व्हाट आई मतलब मेंशन की अंडरस्टैंडिंग माइकल पोर्टर, एक बुक पढ़ी, देन वी फिगर आउट कि यार कॉलेज विद्या में 2 years में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ब्रेक इवन का भी सोच रहे हैं, हमेशा 7th का टेंशन रहता है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली। देन वो आया कि यार प्रोडक्ट में कुछ गलत है, भी यूनिक बनना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से फिगर आउट किया कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत सारे लोग एड चला रहे हैं, लेट देम गिव अ प्लेटफॉर्म, ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म, अनबायस्ड प्लेटफॉर्म। तो आई वुड से कि मैनेजिंग थिंग्स इज डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ जर्नी, इज डिफिकल्ट, मतलब बहुत अच्छी जर्नी होती है, एकदम हाई पॉइंट भी होता है, फिर एकदम से नेक्स्ट डे एकदम लो पॉइंट भी हो जाता है कि कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर एक झटका पड़ जाता है। बट यू हैव टू बी बैलेंस्ड एंड टीम राइट होगा ना, और टीम को ये पता है कि राइट माइंडेड पीपल है, तो इट इज़ मैनेजेबल, मतलब ऐसा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट येस, लर्निंग, अप्लाइंग लर्निंग्स फ्रॉम 2 businesses is good, कि दोनों आप No, that makes sense. Makes sense. The same thing is happening with me also. Like whatever mistakes I have done in my service business, no, that I'm fixing in my healthcare business. Right. And that problem is not there. And whatever new problems that I'm getting there in the healthcare business, I'm trying to implement here also. Right. So truly, that 2 businesses. Okay. How about 4 businesses?
People do 4 businesses. Yeah, you've people seen do, that. Like, मतलब, how do they do that? राइट, मतलब मुझे यही लगता है कि अब जब 2 बेबी पल गए हैं, अच्छी जर्नी हो गई उन्हें, 9th मतलब जैसे फिर 3rd बेबी करो, फिर 4th बेबी कर सकते हो, एंड सी कि ये दोनों बेबी से ये बड़ा बेबी बन सकता है या नहीं, राइट? फिर उसमें और मजा आएगा कि करने में, कि यार एक किक जो चाहिए होती है ना एंटरप्रेन्योर्स को, कि यार उसके दिमाग में सुबह 6 बजे भी वही चीज़ चल रही है, रात के 12 बजे तक वो यही सब सोच रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले 2 बेबी को थोड़ा ग्रो होने दो। डिफिकल्टी कहाँ होगी? जब आपने बहुत सारे बेबीज कर लिए और सारे बेबी स्टेज पे, पहले थोड़ा उन्हें होने दो, 4-5 इयर्स होने दो उन्हें, देन हैव अ 3rd बेबी, देन हैव अ 4th बेबी। मुझे ऐसा लगता है, बट आई थिंक कि मे बी 2 बेबीज के बाद आई हैव गेन्ड एक्सपीरियंस, आई हैव कनेक्ट्स नाउ, तो मे बी मैं 3-4-5 जल्दी कर लूँ, बट मुझे लगता है कि स्लो एंड स्टेडी। And what is your thought process on building business for exit? Because a lot of people are doing it. Both of your businesses are bootstrapped, but in my service business we work with a lot of founders जहाँ पे उनका फोकस है कि यार ठीक है उत्कर्ष, मुझे तू 10 करोड़ का ARR दे दे, मेरे पास 25 करोड़ का बायर रेडी है, ठीक है? तो दे स्टार्ट लाइक दिस ऑल्सो। तो उसमें क्या थॉट प्रोसेस है? डू यू थिंक कि ऐसे बिजनेस बनता है? बिकॉज मेरा माइंडसेट क्या है, मेरा माइंडसेट इज समवेयर इन द मिडिल, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ठीक है यार तुम्हें बिजनेस करना चाहिए, बट बिजनेस के साथ ओवरली इमोशनल भी नहीं होना चाहिए। बट अगर तुम बिल्कुल इमोशनल नहीं होते हो तब तुम्हें हार्ड वर्क करने का मन ही नहीं करेगा उसमें, एंड यू विल क्विट फास्टर। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? मतलब मैं तो नेगेटिव सोचता हूँ इस पे, कि मैं मतलब ये मतलब कि मैं कभी भी बिजनेस इसके लिए स्टार्ट नहीं करूंगा कि मुझे एग्जिट चाहिए, बट यू मेंशन इट वेरी करेक्टली कि इमोशनल भी नहीं होना है। हाँ, अगर नहीं चल रहा है ना, तो इट डजेंट मीन कि मैं इमोशनल लेके कि यार ये तो नहीं, यार ये तो करना ही है, मतलब मैं लॉसेस झेल रहा हूँ दूसरे बिजनेस से, इस बिजनेस में फंडिंग कर रहा हूँ, क्या घर से कैपिटल लेके कुछ कर रहा हूँ। यू हैव टू फिगर आउट कि यार नहीं चल रहा, मतलब ग्राउंड रियलिटीज पता होनी चाहिए कि हाँ इसमें ये नहीं चल रहा है, ये मैं कुछ गलत कर दिया मैंने इसमें स्टेप। तो ओवर इमोशनल भी नहीं होना है, बट हाँ मतलब एंटरिंग बिजनेस जस्ट फॉर द एग्जिट इज नॉट गुड। मतलब आप ये सोच सकते हो कि 4-5 ईयर्स में कि यार दिस इज माई एम नाउ, मतलब मेरा इंटरेस्ट अब थोड़ा, ये बहुत एग्रेसिव बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ इट नीड्स डे टू डे थिंग्स, नाउ यू कैन शिफ्ट टू अनदर। बट स्टार्टिंग में अगर आप ये सोच के आ रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज थिंग। बट हाँ ओवर इमोशनल भी नहीं होना, दैट इज, अगर नहीं चल रहा है तो यू शुड नो कि यार कब ब्रेक लगानी है। fair. And I think you can also, like, you can have your core business which is your vocational business where you feel like to go every day कि मुझे यहाँ जाके काम करना ही करना है। एंड मैं कोई एग्जांपल बताता हूँ, जैसे इफ आई गेट अ डील कि यार देयर इज अ कंपनी, ठीक है, विच इज डूइंग ओके, you have experience of scaling a digital first brand, you come on board, scale it in 6 months, ठीक है, to take that level, and then there is a buyer ready, then maybe I would be okay to do that. Why? Because I know कि चल ठीक है, I'm not focusing, or I'm not asking to sell my business or my baby, right? Is there, somebody else has made this business, and the business is in the mid stage, and I can come in and capitalize it, just like day trading or stock trading, right? Because you buy the share, you put in your value, and then you take an exit. If you have even one core business where you don't feel like okay selling it or think short term, but maybe अगर एग्जिट वाला गेम खेलना है, दैट कुड बी द सेकंड और थर्ड और फोर्थ वन, राइट, जहाँ मैंने सोचा ठीक है इसका एग्जिट हो सकता है तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हाँ मतलब आप मतलब बीइंग एक्सटर्नल पार्टनर्स ला सकते हो, मतलब जैसे आप मार्केटिंग में हैं हम, तो हम एजेंसीज को ला सकते हैं जिसका एम ये है, क्या कंसल्टेंट्स ला सकते हैं फॉर 4-5 मंथ्स जिनका एम ये है कि यार दिस इज माई प्रोजेक्ट, दिस इज द यूज केस दैट आई एम सॉल्विंग, कि इसको ग्रो करना है 4x 5x। तो वो उन माइंडसेट से ला सकते हैं, बट जो इनिशियल फाउंडर है वो अगर उस माइंडसेट से है 4-5 मंथ्स 6 मंथ्स ये मैं बेच दूंगा, ये कर दूंगा, बिकॉज फिर क्या होगा, वो सारे डिसीजन ना शॉर्ट टर्म बेसिस पे लेगा। प्रॉब्लम क्या है, यही है, फिर वो प्रोडक्ट में ज़्यादा डेवलप नहीं करेगा, 100% रिटेनरशिप में डेवलप नहीं करेगा, एक्सपीरियंस में नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एड्स, मार्केटिंग, नंबर बढ़ाओ, पूरा, क्योंकि एवरी थॉट गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो फिर बॉटम टीम भी यार नंबर्स चाहिए इनको, तो कॉल मत उठाओ, कस्टमर की कॉल आ रही है मत उठाओ, इनको तो नंबर्स चाहिए। Fair. Interesting. सो फिर वो Interesting.
it creates problem. So, Sarthak, as an individual and as a business owner, you have to focus a lot on self-development. Right. And that requires you to either read or watch or consume content which is like adding more to your thought. And so you can connect the dots, understand things, and then act better. So knowledge with action is very powerful. Yes. And honestly, when I met you long back, I saw a young champ who is talking sense and logic. I know you read a lot. I know you consume a lot of thoughtful content. But what advice you want to give a founder or anyone who wants to start their own thing and maybe not an avid reader or loves reading? Again, the readers are leaders, and it's not like only if you're reading books then only you can learn. Right. There are audio books, there are a lot of mentorship, listening to podcasts, a lot of things. But what would you advise to a new age entrepreneur that how they should be focusing on their self development and anything that have worked for you, I think or any learning routine that you follow? सो सेल्फ डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगा वंस वी टॉक विद एक्सपीरियंस पीपल. सेकेंडली अगर एक्सपीरियंस मीटिंग आप नहीं कर पा रहे, नेटवर्क नहीं है क्या कोई भी, तो आप बुक्स में वो उनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं. दैट इज़ हाउ द सेल्फ डेवलपमेंट विल हैपन. तो इन स्टार्टिंग आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. नाउ व्हाट आई हैव डेवलप्ड इज कि यार इतना कंटेंट हो गया, आई कैन नॉट रीड एवरीथिंग. नाउ आई हैव फ्यू मेजर पब्लिकेशंस जो मुझे सूट करता है, जो मुझे अच्छा लगता है उनका कंटेंट, और मुझे ये पता है कि ये बायस्ड कंटेंट नहीं होगा. आई एम रेडी टू पे बट आई एम नॉट रेडी टू कंज्यूम एनी कंटेंट क्योंकि अब इतना ओवरलोड हो गया है और सबका हर टॉपिक पे बहुत अलग अलग एडवाइस है. तो व्हाट आई विल सी कि वो क्या बोल रहा है, इज इट मेकिंग सेंस, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको भी एक्सपीरियंस हो जाता है एंड देन यू डेल्व and then you experiment because knowledge without action is nothing. तो मेरा तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं एग्जीक्यूशन नहीं करता ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैंने फिर फायदा क्या हुआ, मतलब ये पढ़ के. तो क्यों फिर इफ बट समझ में आते हैं आपको और फिर आप उसके अंदर और अच्छी चीज़ें कर पाते हैं. तो आई वुड से कि पे फॉर द कंटेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट कंज्यूम एनी कंटेंट, पे फॉर द कंटेंट एंड स्टार्ट रीडिंग बुक्स. In terms of आप 4-5 books ही पढ़ लो, a lot of things would develop. Atomic Habits is there which helps you in creating habits. Then Alchemy is there, मतलब कोई भी marketing कोई भी उसमें जा रहा है तो Alchemy is important. Understanding Michael Porter is best. कि कोई भी business बनाना है तो strategy is very important in the initial phase. Strategy गलत तो फिर आप गड्ढा ही गलत खोद रहे हो ना. मतलब गड्ढा, मतलब आप हार्ड वर्क कितना भी कर लो, पर अगर सीधा है वो आपका एम वहाँ पे पहुँचना है पर आप खुद लेफ्ट रहे हो तो वो नहीं पहुँच पाओगे आप. राइट. तो 4-5 बुक्स आई वुड से कि इज इम्पॉर्टेंट टू रीड एंड देन टॉक विद द कस्टमर्स, टॉक विद योर टीम एज वेल. टीम ही ना बहुत चीज़ें सिखा देती है आपको. उनको सब पता होता है कि क्या गलत चल रहा है. तो टीम एंड देन कस्टमर्स इज ऑब्वियसली देयर, बट सेल्फ डेवलपमेंट, स्टार्ट रीडिंग. मतलब निकालो आप 10 पेजेस पढ़ो एवरी डे. सब बोलते हैं यार बुक्स नहीं पढ़ी जाएगी सार्थक, 10 पेजेस पढ़ो, ज़्यादा नहीं. जिम में जैसे होता है ना 40 मिनट्स का वर्कआउट कर लो, दैट्स इट. नहीं करना 2 घंटे, यार नहीं है मेरे पास टाइम, 10 पेजेस पढ़ लो. मेंटल जिम जैसे हम अपनी बॉडी को करते हैं, मेंटल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, माइंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है. कोई पब्लिकेशन सजेस्ट करना चाहोगे? आई सजेस्ट द कैन. I love it. Morning Context is I also love that. Yeah. Okay, I am in marketing, so I have subscribed to DigiDay also. Yeah. Then I also read Inc 42. Inc 42 plus the subscription, the paid subscription they have, it has some great content on that. These are the 4 that I read daily, and obviously Economic Times Prime. Okay. But what are yours? मतलब द कैन एंड मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट, इट इज नॉट अ पेड मतलब थिंग, ऐसी कोई स्पॉन्सर नहीं, मतलब हम स्पॉन्सर नहीं कर रहे. तो एंड देन आई रीड बुक्स इन टर्म्स ऑफ एल्केमी. आई रीड ऑल्सो, मतलब रीडिंग रहती है. एंड मतलब मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता इतना. आई डोंट लाइक टू कंज्यूम बहुत, उसमें मुझे लगता है कि PR कंटेंट भी होता है और ये सब होता है. एंड नेक्स्ट थिंग आई लव इज एक कोटक डेली आता है, मतलब उसमें एक्चुअली मार्केट का, नई नई कंपनीज क्या क्या कर रही है वो आता है. तो वो
पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि क्या हो रहा है. देन फ्यू आर्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल पे आ गए, तो आई रीड दैट. एंड इकोनॉमिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिस्ट का थोड़ा सब्सक्रिप्शन महंगा है, बट इट इज वेरी वेरी गुड. Okay. It is very good. Awesome. Thank you so much, Sarthak. Thank you. It was lovely having you. Lot of knowledge, lot of learnings, and I hope our audience learns a lot from you. What you have done with College Vidya and SOIC with the right partners is amazing. Keep on growing. I know you will be keep on growing. You have all the traits to grow and go to the heights. All the best. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much for watching till the end. I hope you enjoyed the episode. Please subscribe and share the episode with your network. And if you have any feedback, feel free to put it down in the comments. See you in the next episode.